Welcome back, friends. This is the chapter number 3A continuing. Chapter number 3A, Demand Analysis, Economics. Chapter number 3A, Demand Analysis. In the first part, we had discussed about demand, individual demand, market demand, types of demand and determinants of demand. And as I said earlier, I will be making a second video for law of demand, and this is the second video for law of demand. Law of demand is a very important question. It has been repeated since in old syllabus also. It has been repeated the most number of times. Law of demand. It is a very important question, and this year also it is going to be a very important question for you. So what is law of demand? As we had seen earlier, law of diminishing marginal utility. It is a similar kind of this thing, law of demand. As we have seen earlier in the part 1 of this video, that what is demand, and demand is directly inversely related to price. So as we have seen, as the price goes on increasing, the demand goes on decreasing, and as the price diminishes, the demand increases. So there is a inverse relationship, functional relationship between price and quantity. So demand is equal to function of price. It can be graphically represented as demand is equal to FP. Demand D is equal to FP. That means demand is equal to function of price. Now let us see what is the law of demand. Law of demand introduction part, let us see. The law of demand was introduced by Dr. Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics, which was published in the year 1890. This law explains the functional relationship between price and quantity demanded. As I said earlier, in this microeconomics part, we are going to see around 3 to 4 laws. Law of DMU, law of demand, law of supply. All the 3 laws have been written by Professor Alfred Marshall, which were published in his book Principles of Economics, which was published in 1890. So in the introduction part of all these 3 laws, you can write this full paragraph which is similar to everyone. Now second thing, statement of law. What does this law states? So according to Professor Marshall, other things being equal, other things being constant, higher the price of a commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of a commodity, larger is the quantity demanded. In other words, other factors remaining same, if the price of commodity rises, demand for it falls, and if the price of commodity falls, the demand for the commodity rises. So here you can see here it is given, which I said earlier, D is equal to function of price. Demand, dx is equal to demand for a commodity, F is equal to function, and P is equal to price. So what is demand? Demand is function of price. Demand is equal to function of price. It is graphically represented here also. So let us see the demand schedule. Here you can see in the first column, price of commodity X is given. First, the price of commodity X was 50 rupees and the demand was only 1 kg. Okay, so let us assume this is mango season. So let us assume 1 kg of mango was 50 rupees, but the customer demanded only how much? 1 kg, because the price was higher. As the price gradually decreases, the demand increases. When the price was 50, the consumer wanted only 1 kg. But you can see here in the fifth level, when the price diminished to only rupees 10, he started purchasing 5 kgs of the same thing. So here you can see, you can come to a conclusion that demand is inversely a functional representation of price. As the price of a commodity diminishes, demand increases. So here the same thing is given in this paragraph. You can write in your own words. You can just explain this schedule. You can just explain this table in your own words. Now this is the demand curve, which you have seen earlier in the individual demand and market demand also. So what is a demand curve? Demand curve is nothing but the presentation of this demand schedule, the demand table. So here you can see when the price was 50, the quantity demanded was only 1. As the price goes on diminishing, the demand goes on increasing, which shows the demand curve going downwards from left to right. Okay, so always the demand curve goes from left to right downwards. So now let us see what are the assumptions and exceptions to this law. So assumptions as we had earlier also seen in the law of DMU, assumptions are what? Assumptions are those things which are assumed to be theoretical, not practical. These all assumptions are not practical, they are just theoretical in books. So let us see what are the assumptions. Okay, here also you can see there are around 7 assumptions given. You can do only 4 because this question is asked in combination as a law of demand with assumptions or law of demand with exceptions. So assumptions and exceptions, you can do 4 to 5 assumptions and exceptions separately.
So coming to assumptions, let us see what is the first assumption. Constant level of income. जो इनकम होती है कंज्यूमर की वो कांस्टेंट होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए जब तक हमारा ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है लॉ ऑफ डिमांड का. बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकल. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, these are all not theoretical, these are all theoretical assumptions, they are not practical. So यहाँ पे पहला assumption यही दिया है कि there should not be any change in level of income, which is not possible. Okay, so यहाँ पे लिखा है if there is a rise in income, people may demand more, so आपका law of demand उल्टा हो जाएगा. इसके लिए assumption है कि level of income same होना चाहिए. Second, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन. दिस इज ऑल्सो थियोरेटिकल, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल. पॉपुलेशन तो रोज चेंज होते रहता है, एवरी सेकंड एवरी मिनट चेंज होते रहता है. सो यहाँ पे एज्यूम किया है दैट द साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स अनचेंज्ड. ओके, बट दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. सो ये सारे लॉ ऑफ डिमांड के लिए अजम्पशंस है. प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कॉन्स्टेंट. प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स शुड रिमेन सेम. पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 वही कहता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस भी चेंज नहीं होने चाहिए. बट ये भी प्रैक्टिकल नहीं है, मार्केट में रोज चेंज होते रहते हैं. फिफ्थ, नो एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस. दिस इज ऑल्सो नॉट प्रैक्टिकल. जो भी कंज्यूमर होता है वो फ्यूचर के बारे में सोचता है, फ्यूचर प्राइसेस के बारे में सोचता है और वो आज का कंजम्पशन उसके ऊपर डिसाइड करता है. सो दिस ऑल्सो इट इज अ एजम्पशन. सिक्स्थ, नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंस, फैशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, यहाँ पे वही बोला गया है कि कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए. टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंस, लाइक्स, शेयर उसमें नहीं होना चाहिए. बट ये भी हाईली प्रैक्टिकल नहीं है, बिल्कुल अनप्रैक्टिकल है, क्योंकि लोगों के टेस्ट, फैशन, हैबिट्स रोज चेंज होते रहते हैं. खासकर कपड़ों में, खासकर जो कपड़ों का जो फैशन होता है वो रोज चेंज होते रहता है. सो यू कैनॉट से देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन प्रेफरेंस, फैशन एक्सेट्रा. नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी. कहा गया है कि कोई भी टैक्सेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट का बदलाव नहीं होना चाहिए. अगर होता है तो आपका लॉ ऑफ डिमांड उल्टा हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा. बट चेंजेस इन टैक्सेशन पॉलिसी हो सकती है. गवर्नमेंट जब चाहे तब कर सकती है. एवरी ईयर बजट में भी चेंज होती है, बीच में भी कभी भी गवर्नमेंट चेंज कर सकती है. सो दिस इज ऑल्सो एजम्पशन. सो ऑल दिस एजम्पशंस आर ओनली थियोरेटिकल, नॉट प्रैक्टिकल. नाउ व्हाट आर एक्सेप्शंस. एजम्पशंस का बिल्कुल उल्टा होता है एक्सेप्शंस. और एक्सेप्शंस का मतलब वो होता है कि पूरा आपका लॉ ऑफ डिमांड इट इज एक्चुअली अपोजिट ऑफ व्हाट लॉ ऑफ डिमांड सेज. सो यहाँ पे आप देख सकते हो दो डायग्राम दिया है. द डायग्राम टू द लेफ्ट speaks about law of demand, wherein the law of demand curve goes on diminishing and it is going from left to right downwards. But you can see here in exception demand curve is going upwards. It is not coming downwards, it is going upwards from left to right. So ये पूरा लॉ ऑफ डिमांड का उल्टा हो जाता है. यहाँ पे बोलते हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ेगा. ये बिल्कुल उल्टी चीज़ है जो लॉ ऑफ डिमांड बोलती है. लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलती है? प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा और प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम. बट यहाँ पे एक्सेप्शंस में क्या कहा जाता है? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा. ओके, सो ऐसे एक्सेप्शंस भी दुनिया में होते हैं. लेट अस सी व्हाट आर दिस एक्सेप्शंस जिसमें लॉ ऑफ डिमांड पूरा उल्टा अपोजिट हो जाता है. सो सबसे पहला पॉइंट उसमें दिया है गिफन गुड्स, गिफन पैराडॉक्स. ओके, सो गिफन, व्हाट इज गिफन? गिफन एक आदमी का नाम था, इकोनॉमिक्स का नाम था, जिसका बारे में हम लोग सेकेंड पैराग्राफ में देखेंगे. सो व्हाट आर गिफन गुड्स? गिफन गुड्स को दूसरा नाम बोल सकते हैं आप इंफीरियर गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स. ओके, दीज आर दोज गुड्स विच डिमांड डज नॉट राइज इवन इफ देयर प्राइस फॉल्स. जैसे लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस कम होगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा. बट दुनिया में ऐसे इंफीरियर गुड्स, लो क्वालिटी के गुड्स, गिफन गुड्स होते हैं जिसकी प्राइस कितने भी कम हो जाए उसका डिमांड नहीं बढ़ता है, लोग उसको नहीं खरीदते हैं, लोग उसके विपरीत कोई दूसरी चीज़ खरीदते हैं. सो ये किसने बनाया था लॉ? Sir Robert Giffen observed this behavior in England in relation to bread. He noted that when the price of bread declined, people did not buy more because of an increase in the real income of purchasing power. They preferred to buy superior products like meat. This is known as Giffen's paradox. Okay, उसने ऑब्जर्व किया था इंग्लैंड में पुराने ज़माने में कि वहाँ पे जो लोफ ऑफ ब्रेड होता था उसकी कीमत कम होने के बावजूद, प्राइस डिमिनिश होने के बावजूद लोग उसको नहीं खरीदते थे, क्योंकि अभी लोगों के पास परचेसिंग पावर था तो वो ब्रेड ना लेके मीट, फिश वगैरह खरीदने लगे थे बिकॉज दे वांटेड सुपीरियर गुड्स. इसको बोलते हैं गिफन पैराडॉक्स, गिफन गुड्स. यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड का कर्व नीचे जाने के बजाय ऊपर जाता है. सेकेंड, प्रेस्टीज गुड्स. Okay, prestige goods are those goods which are expensive like gold, diamond, etc. और ये सारे स्टेटस सिंबल होते हैं.
रिच पीपल लोगों के लिए. सो रिच पीपल बाय मोर इवन व्हेन देयर प्राइसेस आर हाई. ओके, सो द रिच पीपल, ओके, उनको अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए इवन इफ द प्राइस ऑफ द गोल्ड और ज्वेलरी और कार्स मे इंक्रीज, दे परचेज इट बिकॉज दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द इंक्रीज इन प्राइस, दे आर जस्ट बॉदर्ड अबाउट देयर प्रेस्टीज एंड रेपुटेशन. थर्ड, स्पेक्यूलेशन. स्पेक्यूलेशन का मतलब वही होता है थिंकिंग अबाउट फ्यूचर. तो यहाँ पे बोला जाता है कि एक कस्टमर, नॉर्मल कस्टमर सोचता है कि दिवाली के बाद ज्वेलरी का प्राइस बढ़ने वाला है, गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है, तो मैं आज ही खरीद लेता हूँ. तो आज गोल्ड का डिमांड बढ़ गया. ओके, सो प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद भी गोल्ड का डिमांड बढ़ गया. इसको कहते हैं स्पेक्यूलेशन. फोर्थ, प्राइस इल्यूजन्स. प्राइस इल्यूजन्स. इल्यूजन्स का मतलब उसको एक छलावा जैसा होता है कंज्यूमर्स के साथ. उसको लगता है कि हाई प्राइस के गुड्स बेटर क्वालिटी के होते हैं. हम लोग भी कभी कभी इसमें आ जाते हैं, फंस जाते हैं. हम लोग सोचते हैं कि जितना प्राइस हाई होगा उतना क्वालिटी अच्छा होगा, लेकिन कभी कभी वो नहीं होता है. तो हम लोग हाई प्राइस पे भी उसको खरीद लेते हैं. हो सकता है वो चीज़ अच्छी निकले, हो सकता है वो चीज़ खराब निकले, बट आपने हाई प्राइस पे भी खरीदा तो उसके लिए आपने प्राइस इल्यूजन्स का एक्सेप्शंस को आपने साबित किया. For example, branded products which are expensive are demanded even at high price. Branded shoes, branded goggles, branded t-shirts वगैरह जो होते हैं उनकी प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद लोग उसको खरीदते हैं बिकॉज दैट इज़ अ स्टेटस सिंबल. उनका प्रोडक्ट का नाम होता है, ब्रांड होता है, तो उसके लिए वो कितने भी प्राइस देने को तैयार है. फिफ्थ, इग्नोरेंस. कभी कभी कस्टमर इग्नोरेंट होता है. उसको पता ही नहीं है कि इसकी प्राइस कम हुई है या ज़्यादा हुई है, उसको कुछ पता नहीं है, तो वो ज़्यादा प्राइस पे भी उसको खरीदता है. फॉर एग्जांपल, अगर वो इग्नोरेंट है, अगर वो सिटी एरिया में नहीं रहता है, कोई गांव खेड़े में रहता है, उसको कोई नॉलेज नहीं है, ही इज़ नॉट हाईली एजुकेटेड, तो दुकान वाला जो उसको प्राइस देगा वो खरीद लेगा. तो कभी कभी वो हाई प्राइस में भी चीज़ को परचेस करता है. सिक्स्थ, हैबिचुअल गुड्स. हैबिचुअल गुड्स का मतलब है सिगरेट, लिकर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो हैबिचुअल गुड्स का कंजम्पशन वो ज़्यादा प्राइस पे भी लोग उसको करते हैं. उसका कितना भी प्राइस बढ़ जाए उसके लिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. इसके अंदर सिगरेट, लिकर के साथ साथ आप टी का भी एग्जाम्पल दे सकते हो. टी इज ऑल्सो अ हैबिचुअल गुड्स फॉर मैनी पीपल. सो दे इवन कितना भी प्राइस बढ़ जाए उसको वो कंज्यूम करते ही है. सो दीज आर ऑल अबाउट लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस एंड assumptions. एंड एज आई said earlier, this question is very important. Law of demand has been asked many times in old syllabus also and this current syllabus also. This is going to be a very important question for you. हो सकता है ये 8 to 10 मार्क्स के लिए पूछा जाए आपको. जैसा मार्किंग स्कीम आगे आएगा आपको बता दिया जाएगा. अभी तक मार्किंग स्कीम फाइनल हुआ नहीं है. पिछले साल तक ये 8 मार्क का क्वेश्चन आता था. I'll just show you what type of question they usually ask about this law of demand. See here, there is given स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद एक्सेप्शंस. ओके, सो योर एक्सेप्शंस की जगह पे वो एजम्पशंस भी डाल सकते हैं. लॉ ऑफ डिमांड का क्वेश्चन सेम रहेगा, साथ में विथ एक्सेप्शंस की जगह पे एक वर्ड ऐड कर सकते हो विथ एजम्पशंस. एक्सेप्शंस एंड एजम्पशंस दोनों साथ में कभी नहीं पूछा जाएगा, दोनों अलग अलग ही पूछा जाएगा. एजम्पशंस और एक्सेप्शंस आपको लॉ ऑफ डिमांड में भी काम आएंगे और अग्री डिसअग्री में काम आएंगे, आपको गिव रीजंस में काम आएंगे, बहुत सारी जगहों पे काम आने वाले हैं आपको. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉ ऑफ डिमांड विद एजम्पशंस and exceptions. Okay, so I hope many doubts have been cleared, and if you have any doubts please send a comment to me. I will be happy to help you. Okay, thank you guys, thank you students, happy learning.